As Saubhagya says to introduce, I am a student of the Charis Bible College. I finished my part-time course in 2022. I started in 2020. I finished in 2022 under Helen ma'am and Saubhagya ma'am. So today we will be doing this lesson on discipleship evangelism. The first part, lesson number 2, that is salvation by grace. Rohan brother, you there? मेरा नाम सुजा जॉर्ज है और मैं बाइबल कॉलेज 2020 से लेकर 2022 में मैंने कंप्लीट किया है। और आज हम देखने वाले हैं कि अपना जो शिष्यत्व का जो पढ़ाई है उसका हम पहला लेवल में का दूसरा भाग देखने वाले हैं, अनुग्रह द्वारा उद्धार। So let us first understand what is the meaning of the word salvation. The word salvation itself means to be saved. और आत्मिक सत्य को समझने के लिए हमें उद्धार क्या है ये चीज देखना बहुत जरूरी है। So the word salvation means to be saved. और उद्धार का मतलब है कि हमारा उद्धार होना, नहीं तो हमारा वहाँ पे मुक्ति, पापों से मुक्ति मिलना। To be saved by grace, salvation by grace is a very important topic for us because grace means what? It is God's undeserved, unmerited favor towards us. That means we have not done anything, but God has given it freely to us. और उद्धार का जो महत्व है, जो हमें उद्धार जो मिला है अनुग्रह के द्वारा मिला है, और उसका महत्व हमें जानना जरूरी है। So in this chapter, salvation by grace, we will be learning a short parable, a very small parable. What is parable? Parable means a small story or an illustration which will help us in understanding the word of God better and in simple words. और आज हम देखने वाले हैं छोटा कथा के द्वारा जो हमें वहाँ पे समझने के लिए मदद करेगा कि उद्धार क्या है। So in this story, I'll just give you context before we start reading. We'll read paragraph by paragraph. We'll understand paragraph by paragraph, and then we will take the questions on it. So first, we'll understand this is the story about a Pharisee and a publican. और आज हम देखने वाले हैं कि जो उद्धार का जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पे फरीसी और जो लोग हैं उसके बारे में क्या कथा कहती है वो देखेंगे। I'll just explain the context. The word Pharisee in itself means a person who thinks that he is very pure. Traditionally, they have been brought up as very lawful people who have always abided the law, or who think that they are extremely righteous and whatever they do is always right. और फरीसी जो शब्द है इसको मैं विस्तार में आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक धर्मी व्यक्ति को दर्शाता है, और वो जो सारी बातें करता है वो बताता है कि फरीसी। And the second character here after the Pharisee is the publican. Publican in this context means a tax collector, a person who collects money from others and gives it to the Roman emperor. So that is the context. और हम दूसरा जो इस कथा में व्यक्ति है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, और उसको चुंगी लेने वाला कहते हैं, जो चुंगी लोगों से लेता था, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। So we'll start it paragraph by paragraph. So we'll start with the first paragraph. Brother Rohan, you can read it in Hindi, the first paragraph. Yeah. I will read here. आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पे। आत्मिक सत्य को समझने के लिए यीशु मसीह कई बार दृष्टांतों के और कहानियों का उपयोग करता था। लूक इसका अध्याय 9 से 14 इस प्रकार शुरू होता है, और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम और को यह दृष्टांत था
एक विशेष समूह को बोल रहा थे। यह वह समूह था जो अपने आप को धर्मी कहकर कहता था और दूसरे लोगों को नीचे जाता हुए देखता था। उसने इन दृष्टांतों को उन लोगों को बताया जो उन्हें बातों पर विश्वास करते थे, जो वो करते थे। वह उन्होंने स्वयं को धर्मी ठहराने वाला कहते थे। इसी विषय पर यीशु मसीह बोला रहे थे जब उसने कहा, वह यह कहते हुए दूसरों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। So everybody's got that book. I could not see the screen in which it was being read. If everybody else was able to see the screen, it is fine. और सबके पास ये किताब है और मुझे वो स्क्रीन स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है, लेकिन आप सभी को स्क्रीन देखती है। The screen, the book from which he was reading the paragraph, were you able to see the paragraph, or do you have the paragraph reference with you? I have sent it on the group on WhatsApp, so even if it was not put up here, they have the PDF. All right, fine. Thank you. So thank you, brother. The first paragraph in that, it speaks that Jesus sometimes used parables to tell stories which illustrated the spiritual truths. Why do we need parables? We need parables so that the lessons which Jesus teaches or the words which Jesus teaches, those become amply clear to us. They become very simple and it stays with us. So when we hear stories, we remember the stories. That is why Jesus spoke through parables, so that we can remember it and we can recollect it. Like how immediately when we say that the parable of the prodigal son, immediately we remember the prodigal son parable, right? Like that only Jesus said many parables so that it becomes clear for us and we remember it for a long time. यीशु मसीह ने बहुत बार दृष्टांतों के द्वारा और के द्वारा लोगों को बात किया और अपनी जीवन आत्मिक बातों को लोगों को बताया, क्योंकि वो हमारे को समझ में आए और हमारे दिमाग के अंदर वो बैठ जाए। इसलिए यीशु ने बहुत बार दृष्टांतों के द्वारा और कहानियों के द्वारा हम वहाँ पे बातें करते हुए हमें दिखाई दिया। In this parable, we'll read from Luke chapter 18, verses 9 to 14. और ये पैराग्राफ में हमने देखा है दृष्टांत में कि लूक इसका 18 अध्याय 9 से लेकर 14 तक हमने देखा है। So here Jesus directly speaks and he says that in this parable, he was directly referring to those people who consider themselves to be righteous and who despised others. और ये दृष्टांत में यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से बताया है कि जो लोग खुद को धर्मी समझते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं, उनके बारे में वहाँ पे स्पष्ट रीति से बात किया है। Jesus was specifically targeting a certain audience because when he was in the earthly ministry, he saw a clear distinction of two kinds of people. One kind of people who thought themselves to be very pure, very holy, whatever they're doing is right and whatever they're doing is just, they just thought very big of themselves. बुराई कर रहे थे उस समय उन्होंने दो तरह के लोगों को देखा है, जो खुद को बहुत ही पवित्र समझते थे, धर्मी समझते थे और दूसरों को नीचा दिखाते थे। He spoke this parable exactly right to those people who said that I am better than you are. और ये दृष्टांत में हमें देखने के लिए मिलता है सही तरीके से और सच्चाई से कि जो खुद को धर्मी समझते उनके बारे में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो खुद को अच्छा समझते और दूसरे को खुद से बुरा समझते। That's about the first paragraph. Now we read the second paragraph. और ये था पहला पैराग्राफ। अभी हम आगे बढ़ते हुए हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं।
और 10 में यीशु मसीह कहते हैं कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। हम आधुनिक भाषा में यह कहेंगे कि वह प्रार्थना करने कलीसिया को गए। उनमें से एक फरीसी था। एक फरीसी बहुत धर्मी व्यक्ति था। इस शब्द का वास्तविक तात्पर्य है अलग किए हुए ऐसा लोग जो इतने धर्म थे कि एक दूसरे से यह कह रहे थे कि मुझे अशुद्ध मत करो, मेरे बहुत करीब ना आओ, मैं अन्य लोगों के समान नहीं हूँ, मैं बाकी सभी से बेहतर हूँ। दूसरे मनुष्य की प्रभु ने की वह था चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाले में बहुत दुष्ट पापी और ऐसे लोग होने के लिए आते थे जो लोग को धोखा देते हैं। वह जो भी रीति बनी पड़ती उसे अपना कर जमा किया करते। वे अपनी जेबों में बहुत सारा पैसा रखते थे और उनसे कुछ रोमी सरकार को दिया करते थे। इसी वजह से उन्हें साथी इनको नीची दृष्टि से देखते थे। Thank you, brother. So in verse 10, Jesus says that he gives the example of two different men who went to a temple to pray. और I'm not able to hear, brother. Are you? So here in Luke chapter 18, verses 9 to 14, in verse 10, Jesus specifically says that there were two types of men. Two men entered the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a publican. और यहाँ पे 10वीं आयत में हमें देखने के लिए मिलता है यीशु मसीह दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक था फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। दोनों भी प्रार्थना मंदिर में गए थे। Pharisee, like how I earlier said, is a very, very religious person. It means he is different from the other people. He does not consider himself as one among other men. He thinks that if other men, normal men touch him, then he'll become unclean. He thinks himself too high of himself. That is the nature of the Pharisee. और मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि फरीसी इसका अर्थ क्या होता है कि वो खुद को बहुत ही धर्मी समझते थे, दूसरों के साथ वो बैठते नहीं थे। और अभी हमने जो पढ़ा था कि उसमें वो किसी को अपने पास आने भी नहीं देते थे, खुद को बहुत ही वो धार्मिक समझते थे। And the other type of man that Jesus presented here was totally opposite. A publican. Publican was a tax collector. He was supposed to be, as in who would like a tax collector? Who would like anyone who comes to your house asking for money? So he was the kind of person who was despised by everybody. Nobody wanted to come near them or nobody wanted to give them attention. और दूसरा उसके विरुद्ध में खड़ा था, वो था कि चुंगी लेने वाला। और चुंगी लेने वाला क्या करता था कि चुंगी लेने के लिए उनके पास बहुत से लोग थे, नहीं तो वो चुंगी बहुत सारे लोगों के पास से लेता था। So here there is a comparison between two exactly opposite people. One who was thinking very high of himself, who was extremely pure according to himself, and the second who was extremely evil, sinful, and not liked or despised by everyone. यहाँ पे हमें दो अलग अलग तरीके के लोग देखने के लिए मिलते हैं। एक बहुत ही खुद को धार्मिक समझने वाला, पवित्र समझने वाला व्यक्ति है, और दूसरा उसके अपोजिट में, यानी कि वो दुष्ट से भरा, दुष्ट जैसा है, वो हमें देखने के लिए मिलता है। So this is how Jesus says stories, when he is a storyteller. When he says stories, it means it has got a lot of meaning to it. That is why he is firstly only made it clear who is a Pharisee, who is a publican, so that we can draw that image in our mind. We already see a very nice, very righteous person and a person who is not very righteous. We already created an image in our minds, right?
और यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा बात करते थे और वहां पे वो बताते थे कि किस तरह से वो व्यक्ति है। हमारे दिमाग में भी परुषी यानी कि किस तरह का वो परुषी व्यक्ति है, धर्मी है, पवित्र है, हमारे दिमाग में हमने एक तरीके से पिक्चर उसको बनाया गया। Now we read the third paragraph. अभी हम आगे बढ़ते हैं तीसरा पैराग्राफ। पद 11 में यह कहानी जारी रखती है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि मैं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के समान अनेक करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न ये चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे नोट करें। वह किससे प्रार्थना कर रहा था? वह अपने आप से प्रार्थना कर रहा था, यद्यपि वह परमेश्वर कह रहा था और सही शब्दों को इस्तेमाल कर रहा था। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को स्वीकृत नहीं देख रहा था। हम बाद में देखेंगे कि यह ऐसा क्यों है। यह नोट करे कि यह किसी प्रकार प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के समान अनाचार करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। जो यह प्रार्थना करने के लिए आया, आप देख सकते हैं कि उसने दूसरे की अवहेलना की और उन्हें नीचा दिखाया, क्योंकि वह सोचता था कि वह अन्य लोगों से बेहतर है। Yes. Thank you, brother. So in verse 11, we see that the Pharisee stood and prayed with himself, which means he did not pray to God, but he prayed with himself. और 11 वचन में हम देखते हैं कि फरीसी वहां पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो वहां पे प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं कर रहे, खुद से वो प्रार्थना कर रहा है। What is prayer? Prayer is a conversation between man and God. God has made us call him our Father. We can call him our Father. We can close our eyes, open our eyes, talk to him. We can communicate to him. But in this story, the Pharisee is only talking to himself. और हम देखते हैं प्रार्थना करना यानी कि हम एक दूसरे से संभाषण करते हैं, जैसे कि हम देखते कि है हमारे अब्बा पिता करके हम परमेश्वर को बात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात देखने के लिए मिलती है कि ये फरीसी खुद से ही बात कर रहा है। He was comparing himself with other men. In his prayer, he was saying, thank God I am not like him. I am not unjust. I am not extortioner. He was just comparing and saying that, thank God I am not anywhere close to like how this man is. Brother Rohan, I think we lost you. You're on mute, Brother Rohan. We cannot hear you. हेलो, अभी Yes, now आवाज we आ can रहा hear. हाँ. तो यहाँ पे वो दूसरे लोगों के साथ खुद को बता रहा है कि मैं व्यभिचार करने वाले जैसा नहीं हूँ, मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। वो वहां पे खुद को दूसरे से कंपेयर करके बता रहा है। Even though he used the word God, but he was not acknowledging God. He was not saying, he was not praying to God. He was just choosing the right, the perfect words which will please anyone. But he was not directly communicating with God in this. और यहाँ पे वो खुद से ही प्रार्थना कर रहा है। वो परमेश्वर कह रहा है, लेकिन वो परमेश्वर से जुड़ा नहीं है, नहीं तो परमेश्वर के साथ वो बात नहीं कर रहा है, वो खुद से ही बात कर रहा है।
So here we see an example of how God is saying to us also that when we pray, if we compare ourselves with others, or if we think that we are higher or lower than others, then it is not actually a prayer which God listens to. और यहाँ पे परमेश्वर हमसे भी किस तरह से बात करते हैं। बहुत बार हम भी अगर ऐसा करते हैं, हम दूसरे से अगर दूसरों को देखते हुए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। Then we need read the next paragraph, which is verse 12. ओके, आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं पद 12 में फरीसी ने कहा, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सर्व कमाई का 10वां अंश में देता हूँ। वह कह रहा था कि देखो मैं क्या करता हूँ। क्या तुम जानते हो उपवास करने का यह अर्थ है? सॉरी, दरअसल इसका अर्थ है बिना भोजन करके रहना। वह कलीसिया को दान भी दिया करता था। वह उन लोगों में से था जो कहते हैं, मेरी चिंता मत करो, मैं अच्छा जीवन जीता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं कलीसिया को धन देता हूँ। So in this paragraph, again he is talking about himself. He is saying that I fast twice a week, I give tithes of all that I possess, I go without food, I give money to the church. He is only praising about himself in the entire paragraph. और ये पैराग्राफ में भी वो खुद की ही बात वहां पे वो कर रहा है। मैं दान धर्म करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। वो खुद की ही प्रशंसा ये पैराग्राफ में कर रहा है। You all know what is the meaning of tithe, right? Tithe means in Leviticus chapter 27 verse 30, it was the first time when tithe word was introduced. It says everything from the land, whatever you grow, whether it is grain or soil or fruits or anything, 1/10 of it belongs to the Lord. वहाँ पे जो कुछ भी हो, अनाज हो, कोई भी चीज हो, पहला आता है उसका Brother, you're not very audible. I cannot hear you. बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है. I think Brother Rohan has joined back in. Brother Rohan, Sister Monty had read us the paragraph. So I'll just go on to explain. Brother Rohan, you're there? You're on mute, brother. Yeah. Yeah, he's on mute. Yeah. आपकी आवाज क्लियर नहीं है पास्टर। या तो यहाँ पर पहले तो हमने देखा वो फैरिसी कैसे अपने आप को इतना अच्छा बताकर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं पैसे भी देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, ऐसे करके उसने अपने आप को ही प्रे किया। उसने गॉड को नहीं प्रे किया, उसने भगवान को नहीं प्रे किया, वो अपने आप को ही अच्छा बताते हुए कर रहा था। और दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं पब्लिकन के बारे में, मतलब जो टैक्स कलेक्टर है, वो क्या करता है, वो एकदम मतलब अपने आप को दोषी ठहराकर, वो अपने आप को एकदम पापी ठहराकर बोलता है कि मैंने बहुत गलत काम किया है, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं आपके घर में, आपके प्रार्थना घर में आके खड़े रहूं, फिर भी मैं यहाँ पर आके खड़ा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं बाकी लोग जैसे अच्छा नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने काफी पाप किया हुआ है। ये बोलकर वो रोने लगा। तो दिस इज एक्चुअली रिपेंटेंस ऑफ सिन। तो
in the Bible also we can see Hebrew chapter 10 verse 14 में it is written, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. मतलब हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, हम अपने पाप को नहीं धो सकते, अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते. We ourselves are not capable of doing it, क्योंकि हम जितना भी अच्छा कर ले, जितना भी अच्छा करें, हमारी अच्छाइयों से हम वो नहीं कर पाएंगे जो यीशु ने हमारे लिए करके दिखाया है. God had died for us on the cross. यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरा है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. हम जितनी भी अपनी अच्छाई दिखा दे, जितना भी हम अच्छा हो जाए, हम 100 चीजों में से 99 चीजें भी अच्छी कर ले, लेकिन एक चीज जो हमसे छूट जाएगा, उसकी वजह से वी विल नॉट बी कॉल्ड राइचियस. मतलब हम वो अच्छाई वाले एरिया में नहीं पहुंच पाएंगे. इसीलिए जो प्रेयर है, जो फैरिसी ने प्रे किया कि मैंने ये किया, मैंने फास्टिंग किया, मैंने पैसे दिए, इसका कोई अर्थ नहीं है. लेकिन अर्थ किसका है? जो टैक्स कलेक्टर ने प्रे किया, बोला मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं आपके सामने खड़े रहने के काबिल नहीं हूँ. दिस इज एक्चुअली प्रेयर. ये सच्चा प्रार्थना है. हम जब भी भगवान से प्रे करेंगे तो हमको भी सच्चे मन से प्रे करना. हमको ये नहीं बताना कि हमने क्या अच्छा किया, हमको वो बताना है कि हम कैसे भगवान के नजर में हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर सके, हम खुद की नजर में वी कैन नॉट बी सेल्फ राइचियस. वी हैव टू बी राइचियस ओनली बिकॉज ऑफ गॉड. भगवान के बल से ही हम आज की डेट पे हम खड़े हैं जहां पर हम खड़े हैं, हमारी खुद की काबिलियत से नहीं खड़े. विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. पद 14 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा. चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर घर गया, वह परमेश्वर के सामने धर्मी घोषित हुआ. वह परमेश्वर के सम्मुख नहीं चाल चलने वाला घोषित हुआ. परमेश्वर द्वारा उसे क्षमा घोषित किया गया. उसे क्षमा क्यों किया गया? वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया जाकर क्यों घर गया? और धर्मी फरीसी परमेश्वर की दृष्टि के धर्मी क्यों नहीं ठहराया गया? यह इसलिए था कि फरीसी ने अपने आप को यह कहते हुए ऊंचा उठाया कि मैं अन्य लोगों से बेहतर हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं अन्य लोगों के समान नहीं हूँ. जबकि चुंगी लेने वाला जानता था कि वह परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने लायक नहीं है, वह उसे कुछ भी नहीं दे सकता था. वह पापी था. बाइबल कहती है कि यीशु मसीह धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया, पर पापियों को बचाने के लिए आया. और हम सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. इस चुंगी लेने वाले ने अपने आप को दिन किया और उसे पाप क्षमा और माफी मिली. Thank you, sister. So here in verse 14, it clearly says that we are not by our prayer, but by God only we are justified. मतलब हम अपनी प्रार्थना या अपनी अच्छाइयों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से नहीं भगवान के सामने खड़े हैं. भगवान जीसस ने अपने आप को हमारे लिए क्रूसिफाई किया, इसी वजह से हम आज जहाँ खड़े हैं वहां खड़े हैं. उसका मतलब कि हमको फरीसी जैसे अपने आप की तारीफ करके नहीं प्रे करनी है. हम जो भी हमारे में अच्छाई नहीं है, हमको वो बताना है. हमको वो वी जस्ट हैव टू कन्फेस आवर सिंस. हम अगर अपनी सिंस कन्फेस करेगी, सच्चे दिल वाली प्रार्थना ही यीशु को सुनाई देती है. हम अपने आप के बारे में जितनी भी तारीफ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान सबको जानता है. हम बोले नहीं बोले उसको सब पता है, हमको बोल के दिखाने की जरूरत नहीं है.
हम वो बोलेंगे जो हमको रिपेंट करना है, जो जो हम बुराइयां हमको हम में से निकालना है, उसको बोल के कन्फेस करो, ताकि हम अपने आप को सुधारे। हम भगवान से 1% भी कुछ और ले नहीं सकते, जो देना था उसने दे दिया। ही डाइड ऑन द क्रॉस, दैट इज द मैक्सिमम ही कुड गिव फॉर अस। वो क्रूस पे मरा, उससे ज्यादा और कुछ हम कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते। कुछ भी हम करें, हम उसको और बड़ा या और अच्छा नहीं कर सकते। हमको वो अच्छाई को और बड़ा करके नहीं दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि हम जो पाप कर रहे हैं, हम वो पाप को रिपेंट करके वी कम बेटर आउट ऑफ दैट थिंग। ब्रदर रोहन, आर यू देयर? No, no, he's not there. He's locked. Yeah, yeah. But you are saying very good. We can understand. Okay. Yeah. We'll read the next paragraph. या हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अनुग्रह एक अद्भुत शब्द है। मैं आपको अनुग्रह की एक स्वीकृत परिभाषा दूंगा, पर अनुग्रह का अर्थ इससे कहीं अधिक है। ग्रीक भाषा जिसमें नया नियम लिखा गया है, वहां पर अनुग्रह शब्द के लिए उपयोग किया गया शब्द चेरिस पे है। अनुग्रह की एक स्वीकृत परिभाषा यह है, मुफ्त परमेश्वर द्वारा उन लोगों के प्रति की गई मुफ्त की मेहरबानी जो इसके योग्य नहीं है। यह चुंगी लेने वाला परमेश्वर की ओर से कुछ भी पाने के योग्य नहीं था, पर उसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन किया। ग्रीक भाषा में एक अन्य शब्द करिश्मा है, जो कि कैरिस शब्द है, जो आखिरी में मां प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। इसका अर्थ परमेश्वर की ओर से एक विशिष्ट प्रगटीकरण या परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का रूप है, और यह चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराया जाना, परमेश्वर के साथ नहीं सही संबंधों में होने को एक उपहार स्वरूप पाया। Thank you, sister. So here, in this paragraph, it is saying that we are talking about salvation by grace. So like how sister explained, it is अनुग्रह द्वारा उद्धार में प्रवेश करने की चर्चा की गई है यहाँ पर। It is not by our works, हमारे कामों के अनुसार नहीं, but अनुग्रह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलेगा। और वो अनुग्रह हमें कैसे मिलेगा? कि हमें ऑलरेडी मिल गया है वो अनुग्रह, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है वो अनुग्रह और प्राप्त करने की। हमको सिर्फ उसे स्वीकारना है। वो हमारा काम क्या है? उसे स्वीकारना, क्योंकि अनुग्रह ऑलरेडी दे दिया है सबको, उसको स्वीकारना ही हमारा सिर्फ काम है। यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज में ग्रेस वर्ड को कैरिस बताया है। कैरिस मीन्स ग्रेस, मतलब ग्रेस को यहाँ पर क्या बोला है? Grace is anugrah. Yeah, anugrah, right. Yeah. So charis word is the meaning of grace, and grace means anugrah. That is the accepted definition of grace. मतलब वही स्वीकारा गया हुआ शब्द है उसका। And also the tax collector did not deserve anything from God. मतलब वो जो चुंगीकार है उसने कुछ चाहा नहीं कि भगवान उसे दे दे, लेकिन उसने अपना दिल खोल के बता दिया कि ये देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने आके मैं माफी मांग रहा हूँ। वही सबसे अच्छी प्रार्थना है।
तो हमको भी यही करना है। अगर हमने कोई गलती की है, अगर हम पाप से भरे हैं, या अगर हमको अंदर से कुछ लग रहा है, तो हमें उसे बता के स्वीकारना है कि हम अपनी भलाई की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ व्हाट गॉड हैज डन, भगवान ने जो हमारे लिए किया है उसी की वजह से हम उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। तो हमें और कुछ उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। वी रीड द लास्ट पैराग्राफ। ओके। रोमियो 5:17 कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर आपको और मुझे अपने सम्मुख धर्मी ठहराए जाना एक वरदान स्वरूप देता है। हमारे अनुच्छेद के चुंगी लेने वाले ने न्यायोचित धर्मी ठहराए जाने का वरदान पाया, जो कि सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आ सकता है। यूहन्ना 1:17 में बाइबल कहती है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यह अनुग्रह सिर्फ एक ही प्रकार के व्यक्ति को मिलता है जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करते हैं और यह जानते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख वह खड़े होने के लायक नहीं है, और जो परमेश्वर की दया के लिए पुकारते हैं, वह लोग परमेश्वर की दया और क्षमा प्राप्त करेंगे। Thank you, sister. So here it again talks about the abundance of grace. मतलब भगवान ने जो दिया है हमें भरपूर दिया है, तो हमें उसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं करना है कि हाँ भगवान ने दे दिया, अभी हमको अपना पार्ट करके दिखाना है, ऐसा नहीं होता है। भगवान ने जो दे दिया वो खत्म करके कंप्लीट करके दे दिया है, हमें उसमें और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे सिर्फ स्वीकारना है। तो जैसे टैक्स कलेक्टर ने बोला है, जो चुंगीकार है उसने बोला है कि मैं जो भी हूँ आपके सामने आके बता रहा हूँ, तो वैसे ही हमको हमने जो भी किया है भगवान के सामने बस आके बताना है। जो भी है भगवान हमें स्वीकारेगा, वो हम उसने ऑलरेडी स्वीकारा है हमें, तो हमें उस डरने की या भय में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जॉन 1:17 में लिखा है कि मोजेस ने लॉ दिया, मतलब मोजेस ने नियम दिया, अगर हमको नियमों का पालन करना है तो 611 नियम है। क्या हम हर एक 611 नियमों का पालन कर पाएंगे? हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नियम इतने छोटे छोटे नियम, ऐसे ऐसे नियम है कि हम कुछ भी कितना भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं तो हमसे उसमें गलती होगी ही। तो हम अपने काबिलियत से कभी भी नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें कंप्लीटली जीसस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हमें सब कुछ मतलब उससे देना पड़ेगा, हमारा सारा ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल आवर वर्क्स, एवरीथिंग जो भी है हमको सब भगवान के ऊपर सौंपना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, एक तू ही है जो हमें उद्धार दिला सकता है। हम अपने कामों के वजह से नहीं, लेकिन तूने जो क्रूस पे किया है उसकी वजह से ही हम उद्धार पाएंगे। तो दिस इज द ओनली थिंग, यही एक चीज है जो जीसस मांगता है हमसे, कि वी शुड कम टू हिम विद फेथ। हम उनके पास आए, क्योंकि काम तो उन्होंने पूरा कर दिया, अगर हम फेथ के साथ उनके पास आएंगे, दैट इज द अल्टीमेट थिंग विच गॉड वांट्स फ्रॉम अस। तो अगर हम आएंगे तो भगवान हमें जरूर माफ करेंगे, और हमको सोचने की या डरने की, भय करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमारे लिए ही किया है, हमको उसे सिर्फ स्वीकारना है।
तो अगर मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगी, जैसे एक हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी के बीच में अगर लड़ाई होती है बीच में, तो क्या हम लड़ाई करते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़ाई छोटी सी होती, तुमने बर्तन फेंका, तुमने कुछ किया, छोटी सी लड़ाई हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि हम डिवोर्स के बारे में इतनी जल्दी सोचते हैं। तो ऐसा ही रिलेशन है हमारा जीसस के साथ, कि अगर हमने कुछ गलती कर लिया तो हमें उससे सॉरी बोल के हमें स्वीकारना है। पति और पत्नी के बीच में कैसे होता है, किसी एक को हमेशा सॉरी बोलना ही पड़ता है। हमेशा ऐसे लगता है कि हम ही सॉरी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक सॉरी बोल देगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इन आर केस ऑल्सो इट इज लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप विद गॉड। हमारा भगवान के साथ ऐसा ही रिलेशनशिप, उससे भी काफी पवित्र और काफी अच्छा रिलेशन है। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफी मांग लो और उसे खत्म कर दो। उसका मतलब ये नहीं कि हम वो रिलेशन तोड़ के कहीं और चले जाए, कहीं और किसी और की चरणों में आ जाए, उसकी जरूरत है ही नहीं। क्योंकि छोटी मोटी चीजें होती है, हम उसमें आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। भगवान ने हमें इतना फ्रीडम दिया है कि हम कोई भी चीज उसको आके बता सकते हैं, और हम नहीं बताएंगे तो भी उसे पता है। इट इज ओनली आर हार्ट कंडीशन। हमारे दिल को बस बताना है कि हम उसे कितनी प्योरिटी से, कितनी अच्छे से आके जीसस को बता के हम अपने पापों को अपने आप ही कन्फेस करके उसको धो रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सैल्वेशन बाय ग्रेस। मतलब हम अपने कामों से नहीं, बल्कि जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस में किया है, उसकी वजह से ही हमने उद्धार पाया है। Questions? I'm not sure how we can take the questions. Sister, if you can read the questions, आप पढ़ोगे तो मैं आंसर्स ट्राई करती हूँ बताने का। लूका 18:9 पढ़िए। वो आप इंग्लिश बोल सकते चलिए। ओके, दृष्टांत क्या है? दृष्टांत मीन्स इट इज अ पैराबल, राइट? उसका हिंदी आंसर है क्या आपके पास? दृष्टांत मतलब कहानी होती है, जो मतलब कोई एक विषय या एक सत्य को दर्शित करता है। तो दृष्टांत मीन्स इट इज लाइक अ पैराबल, इट इज अ इलस्ट्रेशन और एन एग्जाम्पल देके जिससे हम किसी चीज को व्यक्तित्व करते हैं। ओके, लूका 18:9 पढ़े। इस दृष्टांत को यीशु मसीह ने किसको निर्देशित किया? तो उन लोगों को To whom did Jesus direct this parable? किसको किया है, आप में से कोई बता सकता है? उन लोगों को किया है जो अपने आप पे भरोसा रखते हैं, वो जो अपने आप को धर्मी या स्वयं धर्मी मानते हैं, उनके लिए किया है। तो जीसस क्या बोलता है पैराबल में, कि अपने आप पे भरोसा मत करो, लेकिन मैंने जो कार्य किया है उस पे भरोसा करो। लूका 18:9 पढ़े। पद का आखिरी भाग, लोग जो स्वयं धर्मी होते हैं वे अक्सर दूसरों के प्रति एक दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। लूका 18:9 के अनुसार वह दृष्टिकोण क्या है? कोई बता सकता है वो दृष्टिकोण क्या है? वो दूसरों को तुच्छित करते हैं, मतलब वो दूसरों को सब मानते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, जो कुछ किया है सब मैंने किया है, मैं ही सही हूँ। तो दूसरों को तुच्छा करना। ओके, दिस इज द ओके। लूका 18:10 पढ़े। दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। आधुनिक भाषा में वे कहाँ प्रार्थना करने के लिए गए? अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में जानना है तो वो कहाँ प्रेयर करने के लिए गए? वो चर्च में या कलीसिया में प्रेयर करने के लिए। लूका 18:10 पढ़े। यह लोग कौन थे? कौन से दो लोगों के एग्जाम्पल दिए इसमें? फरीसी एंड पब्लिकन। राइट, फरीसी एंड चुंगी। लूका 18:11 पढ़े। फरीसी की प्रार्थना क्या थी? क्या थी फरीसी की प्रार्थना? वो तो बोल रहा था कि मैं अपने आप का ही धन्यवाद करता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने पैसे दिया है। वही थी उसकी प्रार्थना। लूका 18:12 पढ़े। उपवास का अर्थ क्या है?
उपवास मतलब फास्टिंग. फास्टिंग मीन्स बिना भोजन के रहे. लुका 18:12 पढ़े. इसके तहत दशमांश देने का क्या अर्थ है? Everybody knows what tithe is. Dashmansh means, I told you in Leviticus chapter 27 verse 30 it is mentioned that tithe is everything from your land. मतलब Leviticus chapter 27:30 में लिखा है जो भी आपके पास है, अगर आप ग्रेन्स उगा रहे हो, अगर आप फ्रूट्स उगा रहे हो, या आप कोई काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसका 1% भगवान को देना है, उसको टाइथ बोलते हैं. लुका 18:13 पढ़े. चुंगी लेने वाला कहाँ खड़ा था? क्यों? कोई बता सकता कहाँ खड़ा था? वो बाहर ही खड़ा था क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अंदर आके प्रार्थना करूं. लुका 18:13 पढ़े. चुंगी लेने वाला अपना सर क्यों झुकाए हुए था और ऊपर क्यों नहीं देख रहा था? क्यों झुकाया हुआ था? क्योंकि वो शर्मिंदा था और वो मान रहा था कि उसने गलत काम किया हुआ, इसीलिए उसने अपना सर झुकाया. लुका 18:13 पढ़े. चुंगी लेने वाले की प्रार्थना क्या थी? क्या बोला उसने? उसने बोला परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर. लुका 18:14 पढ़े. इनमें से कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया गया जब वह अपने घर गया? आप बताओ, आप लोग में से कोई भी एक बताओ कौन धर्मी ठहराया गया? टैक्स कलेक्टर. वेरी गुड. टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला ही धर्मी. लुका 18:14 पढ़े. फरीसी के बजाय चुंगी लेने वाला क्यों धर्मी ठहराया गया? क्योंकि उसने आपको परमेश्वर के सामने दीन कर दिया था. उसने बोला कि जो भी हूँ मैं ऐसा ही हूँ, मुझे माफ कर दो. तो उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने पापी कहला के, जो भी है उसने सच बोल के अपने आप को छोटा दिखा. लुका 18:14 पढ़े. क्या परमेश्वर ने इस चुंगी लेने वाले को क्षमा किया? किया ना. हाँ. Then ओके. लुका 18:14 पढ़े. यदि आप ठीक इसी वक्त अपने घुटने टेक ले और अपने दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकार उठे, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, तब क्या परमेश्वर आपके साथ ठीक उसी तरह व्यवहार करेगा जैसे उसने चुंगी लेने वाले के साथ किया था? जरूर करेगा. अगर आप अपने आप को परमेश्वर के सामने सच्चे मन से कहोगे कि मुझे क्षमा कर दो, अगर आप रिपेंट करोगे, वो जरूर आपको क्षमा कर देगा. क्षमा ऑलरेडी मिला हुआ है, आपको स्वीकारना है. I think that was the last question. Thank you very much, sister. You really helped. No worries. Thank you. I think that's all we have for today. Yes, thank you, Have a Suja. blessed week. Thank you. Thank you.